the introduction to linked list, followed by we had started with the program. I told you all concepts, all examples will be demonstrated through the help of the program. Now see, we have two classes here, the struct node class, we have one structure. We could have made that class also, but since we do not need a constructor for node, so it is sufficient for us to make a structure. Then a class with the name link type. Okay, so we had written the declaration for all the member functions. Let us move to the definition and body of all these member functions. So first of all, the most important function is the create new node function. One second, someone is trying to join. Okay, so first of all, we have to start with the create new node function. Create new node function, as we know, it always, what happened? My writing pad is not working today. Yes, now it is working. Okay, so create new node function. First of all, it is always returning a pointer to a freshly created node. That is, the return type will be node asterisk, name of the class, linked type, scope resolution operator, name of the member function, create new node. And what are we passing? We are passing an integer variable that we are going to store in the info part of the freshly created memory. Okay, now coming to the function body, first of all, we have to create a new pointer, a local pointer, say node asterisk new PTR or nptr or temp, whatever name you give it. Now, how do we get the memory dynamically? Pointer name is equal to the new operator in C++ followed by the data type. किस प्रकार की आपको फ्रेश डायनामिक मेमोरी चाहिए? हमें किस प्रकार की चाहिए? नोड टाइप की चाहिए. नोड इज ए स्ट्रक्चर इन आवर प्रोग्राम. Now, how do we put this I in the info part of the node? What is the syntax? I told you yesterday. Whenever we have pointer arrow equal to I. Arrow equal to I. And similarly, new PTR arrow next equal to null. So what will be the resultant of all these statements? First of all, node asterisk new PTR. So new PTR, a new pointer will be created and it will be pointing to some garbage, junk memory location, which is unknown to us, right? Then after that, new PTR equal to new of node. So a fresh memory of node type. Node is a structure which has the info part and the next part. So this link will break up because of the second statement. New PTR will start pointing to a fresh memory which has been created dynamically. Then new PTR arrow info equal to I. So either जो I की value है, say 45 will be stored, and its next, that is the pointer part, will be grounded. Now, this dynamically created memory does not have any name. So, how do we access it? Using the pointer that is pointing to it. So, we are just simply going to write return new PTR. हम return तो pointer कर रहे हैं new PTR, लेकिन इस pointer की मदद से हम वो fresh memory जिसको new PTR point कर रहा है, we will be able to access it in our program. Then after that, we had create new list program. Create new list में, as I told you, ये initial setup, एक initial linked list बना देते हैं हम इस program में, जो standalone linked list का program है, so that we can perform other menu operations on that initial setup of the linked list. So let's come to create new list. So create new list, as we just saw, it is not returning anything. Name of the class, scope resolution operator, name of the member function,
we are passing node asterisk new PTR. ठीक है, हम क्या करेंगे मेन फंक्शन में, we will make a loop like how many nodes do you want in the initial setup. Somebody needs to switch off the mic. Lakshita, can you? Lakshita, yes, please better switch off the mic. Okay, so in the initial setup, in our main function, we will ask how many nodes do you want in the initial setup, and depending on that value of n, that is the number of nodes in the initial setup, we will execute some loop n times, and from inside the body of that loop, we are going to invoke create new list function, right? Okay, now coming here, we need to create a temporary pointer of node asterisk type. Let's say हम इसका नाम अब temp दे देते हैं, ठीक है? And then temp is equal to start. Temp will point where start is pointing. Start हमारा start या header pointer है, as you can see here in the class. This is my start pointer और constructor के through start हमेशा null है. So it is guaranteed जब हम create new list के अंदर पहली बार आएंगे तो हमारा start जो है grounded है, इसलिए temp भी grounded हो जाएगा because constructor तो automatically invoke हो गया होगा whenever we made an object of link type class. Now after that, start is equal to new PTR. Start will point where new PTR is pointing. We are making a new setup. Okay, I'll show you how this will work. And then जो new PTR जो हमने pass करा है उसका next part is equal to temp so that it becomes the new node. Now how is this working? See, when my program starts, initially my start pointer is grounded. Okay, and temp node asterisk temp is pointing to some garbage or memory location, and new PTR that we have passed as a parameter, it is pointing to a freshly created dynamic memory that we had passed indirectly using the pointer. Suppose it is 45 here. Now, अब हमें initial setup बनाना है. Temp is equal to start. So this garbage link breaks up and temp starts pointing where start is pointing. So temp is also grounded. After that, start is equal to new PTR. So this link breaks up and start starts pointing where new PTR is pointing. After that, new PTR arrow next is equal to temp, that is grounded. So you can see when I'm trying to add the very first node into my initial setup, the picture will become something like this, and it is correct also. You see, new PTR fresh memory को point कर रहा था जो very first node है to be added into the initial setup. तो उसको ऐड करने के बाद आप ये देखिए जो आपका स्टार्ट या हेडर पॉइंटर है वो एक सिंगल नोड जो मेरी लिंक लिस्ट में है उसको पॉइंट कर रहे हैं 45 वाले नोड को, एंड सिंस 45 वाला नोड इज द ओनली नोड इन द लिंक लिस्ट, सो वही फर्स्ट है वही लास्ट है, वही फर्स्ट नोड है वही लास्ट नोड है. तो अगर वो लास्ट नोड है तो उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ग्राउंडेड होगा. सो ऑल माय पॉइंटर्स आर इंटैक्ट, आई मीन दे आर assigned values correctly. Is this much clear, girls? Yes, ma'am. Now suppose I already have an initial setup. Okay, I'm telling you the other possibility that can happen in create new list. This is one possibility, this is the other possibility. This is my start pointer और already मेरे पास मेरी लिंक लिस्ट में मतलब इनिशियल सेटअप जो मैं बना रही हूँ मैं 4 नोड्स का बनाना चाहती हूँ. तो मेरे पास ऑलरेडी 35, 65, 15 ऑलरेडी ये हैं एंड आई हैव पास्ड न्यू PTR which is pointing to the fresh memory से उसके इन्फो में 45 है, नेक्स्ट इज ग्राउंडेड. तो मेरे पास कुछ पिक्चर ऐसी है, आई हैव एंटर्ड द लूप बॉडी. ठीक है, मैं अपने इनिशियल सेटअप में 4 चाहती हूँ, 4 नोड्स चाहती हूँ. ऑलरेडी एक एक करके मैंने 3 तो ऐड कर दिए हैं इनिशियल सेटअप में. अब 4th वन कैसे ऐड होगा, यू सी नोड asterisk temp. After that, temp will point where start is pointing because of this statement temp equal to start.
So temp will also point to 35 wala node. After that, start is equal to new PTR. So this link will break up. Start will point where new PTR is pointing, that is to this node. And then new PTR arrow next. Where is new PTR arrow next? This thing. Next part of the node to which new PTR is pointing. It will point where temp is pointing, that is to this node. Now you look at the direction of the arrows in the resulting picture. Start pointer हमेशा first node को point करेगा, वो 45 को point कर रहा है क्योंकि मैंने 45 वाला नोड एक नया नोड फिट कर दिया अपनी लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट वाला नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, दैट इज 45 को। 45 का नेक्स्ट जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट करेगा, मतलब 35 वाले को, वो भी सही है। और उसके आगे 35 का नेक्स्ट 65 वाले नोड को, एंड सो ऑन। सो in the resultant picture, start and new PTR and temp are not of any importance to me. लिंक लिस्ट में मुझे लास्ट में क्या देखना है कि मेरा स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, और फर्स्ट नोड का पॉइंटर सेकंड को पॉइंट करेगा, सेकंड का पॉइंटर थर्ड को पॉइंट करेगा, एंड सो ऑन। तो वो सब मेरा सही है। सो यू सी, इफ आई वांट 4 नोड्स टू बी एडेड inside my loop, as we will see in the main function, वो 4 बारी create new list invoke होगा और एक एक करके आपके जो है nodes add up हो जाएंगे। One more thing we have to observe in this initial setup is that whenever I am adding a new node, I am adding it as the very first node, जैसे कि 45 वाला node, but there is no compulsion on this. Linked list data structure में ऐसी कोई भी compulsion नहीं होती कि आप addition कहाँ करेंगे। You can add it to the beginning of the list, जैसा कि हमने किया है। You can add it to the end of the list. You can add it somewhere in between, not an issue. जो topmost location पे addition या deletion होता है, that restriction is there only in the stack data structure. Clear है girls? May I proceed? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now coming to the next member function, which is add after. ठीक है, किसी पर्टिकुलर नोड के बाद नया नोड ऐड करना, नाम से ही पता लग रहा है, इसीलिए मेंबर फंक्शन का नाम हमने ऐड आफ्टर लिखा था। ऐड आफ्टर नोड एस्टरिस्क nptr। नाउ इंट आफ्टर, सबसे पहले तो हम यूजर से लेंगे भाई कौन से नोड के बाद तुम नया नोड फिट करना चाहते हो, ठीक है। तो उस नोड जिसके बाद आप ऐड करना चाहते हो उसका ऑब्वियसली इन्फो पार्ट लेना पड़ेगा ना आपको यूजर से, तभी तो आप उसको पहचान पाओगे कि किसके बाद नया नोड फिट करना है। और एक टेम्परेरी पॉइंटर बना देते हैं, वो हमें ज्यादातर मेंबर फंक्शंस में बनाना पड़ेगा, नोड स्टार टाइप का। देन सी आउट, एंटर द इन्फो पार्ट of the node after which you wish to add. Okay, हमने उस वेरिएबल का नाम ही आफ्टर रखा है ऊपर, इंटीजर टाइप। अब सबसे पहला काम क्या है, उस आफ्टर वाले नोड को लोकेट करना मेरी लिंक लिस्ट में, ठीक है। सो सपोज माय लिंक लिस्ट एट द प्रेजेंट इज समथिंग लाइक दिस। See, I have 45 here, 65 here, 15, और जो नया नोड मुझे फिट करना है उसके इन्फो पार्ट में 25 है, और सपोज कर लो आफ्टर की वैल्यू मैंने 65 डाली, ठीक है। मुझे 65 के बाद 25 वाला नोड फिट करना है, मीनिंग 65 और 15 के बीच में 25 वाला नोड आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 65 वाले नोड को लोकेट करेंगे कि ऐसा नोड का इन्फो 65 है कहाँ है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम एक टेम्पररी पॉइंटर जो कि हमने टेम्प बनाया है, सबसे पहले उसको वही पॉइंट करेंगे जहां पर स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, यस और नो। फिर उसको एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे टेम्प पॉइंटर को, जब तक हमें 65 वाला नोड ना मिल जाए। वी मेक ए टेम्पररी पॉइंटर टेम्प बिकॉज स्टार्ट को अगर हम अपडेट करेंगे तो मेरी डेटा स्ट्रक्चर जो है अंडरलाइंग लिंक लिस्ट वही डिस्टर्ब हो जाएगी, yes or no? That is what I do not want. So for temp is equal to start, ठीक है। और कब तक चलाना है मुझे ये,
देखिए पहले टेम्प 45 वाले को पॉइंट करेगा, फिर 65 वाले को, ठीक है, फिर 15 वाले को। जब वो 15 वाले को पॉइंट कर रहा है तब भी तो चेक कर सकती हूँ ना, मेरी आफ्टर की वैल्यू 15 भी हो सकती है। फिर उसके बाद टेम्प 15 का नेक्स्ट ग्राउंडेड है, टेम्प विल आल्सो बिकम ग्राउंडेड, तो तब कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं है। सो माय लूप विल एग्जीक्यूट टिल माय टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। और टेम्प को एक कदम आगे कैसे बढ़ाते हैं, वी हैड सीन यस्टरडे, टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, मीनिंग टेम्प वहीं पॉइंट करेगा जहां पर टेम्प एरो नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। अब सपोज बिकॉज ऑफ दिस माय टेम्प इज पॉइंटिंग टू 45 वाला नोड, ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे 45 विद यू नो दिस 45 विद दिस 65 जो मैंने आफ्टर की वैल्यू दी है। सिंपली इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ temp arrow info meaning info part of the node to which temp is pointing, वो कितना है 45। now is this equal to after, नहीं, तो इधर कुछ if ब्लॉक लगाएंगे अगर ट्रू कंडीशन है, और अगर ये फॉल्स है तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे अपना टेम्प एक कदम आगे बढ़ाना है, और एक कदम आगे इस अपडेशन पार्ट से बढ़ेगा। when will my control come to this updation part, after you know ending of my for loop body। for loop body end होगी तब फिर दोबारा जो है उस पे जाएगा अपडेशन पार्ट पे। ओके, सो temp equal to temp arrow next meaning temp will point where temp arrow next is pointing, that is to 65 वाला node you see here। okay, now if temp arrow info that is 65 is equal to 65, this is true, so I will enter the loop body, sorry the if body। अब if body में क्या करना है मुझे, 25 को 65 के बाद फिट करना है। I forgot to draw new PTR here, make new PTR here which is pointing to the new node which is to be added। अब देखिए क्या मैनिपुलेशन करेंगे पॉइंटर्स का, yes 65 का नेक्स्ट 25 को पॉइंट करना चाहिए, और 25 का जो नेक्स्ट है वो 15 को पॉइंट करना चाहिए, then my goal will be achieved, isn't it? So can anyone tell me the set of statements to be written inside the if block? Yes? And temp arrow next is equals to new PTR arrow next. First statement, temp arrow next is equals to new PTR and what? Speak out again. temp arrow next is equals to new PTR. Wait a minute. See, you are saying temp arrow next is equal to new PTR. If I do this now, what is going to happen? जो 65 का नेक्स्ट है वो 25 वाले नोड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट है ना 15 एंड फर्दर, उससे मेरा कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगी अगर आप 65 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको पहले अपडेट कर दोगे। So you have to be very careful with the order of manipulation of pointer. Ma'am, it will be NPTR next and PTR arrow next, और मैम मतलब लास्ट वाले 15 से करवाएंगे एंड देन उसके बाद ये वाला First, टेम्प new PTR arrow next जो है meaning this pointer, Yes, this ma'am. will start pointing where temp arrow next is pointing। temp arrow next क्या है, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है 15 वाले को। सो न्यू PTR arrow next will also start pointing to 15। अब temp आप देखिए अभी भी 65 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, temp arrow next is equal to where new PTR is pointing। so this link will break up, ये मेरा temp arrow next है and this will point where new PTR is pointing, that is here। now you look at the direction of arrows। start जो है फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं 45 वाले, वो तो अनडिस्टर्ब पार्ट है, हमने उधर कुछ नहीं अपडेट करा। 45 का नेक्स्ट 65 को पॉइंट कर रहे हैं, 65 का नेक्स्ट 25 वाले को पॉइंट कर रहे हैं, और 25 वाले का नेक्स्ट 15 को पॉइंट कर रहे हैं, 15 का नेक्स्ट ग्राउंडेड है। अब माय रिजल्टेंट लिंक लिस्ट पिक्चर इज परफेक्टली फाइन and 25 वाला node has been inserted between
65 and 15 वाला. Is it clear, girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is very important to draw the small sample diagram, children. अगर आप डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्राम्स में डायग्राम नहीं बनाएंगे तो रटिफिकेशन करनी पड़ेगी, which is not a good idea. Okay, now coming to void link type. I think add after के बाद add before हमने लिखा था. Link type add before node asterisk nptr या new ptr, जो भी नाम दें आप, ठीक है. अब उसी तरीके से पहले मुझे एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल बिफोर बनाना पड़ेगा और यूजर से लेना पड़ेगा इनपुट, बिफोर विच नोड डू यू विश टू एड, सी इन बिफोर, ठीक है. देन let's look at the picture. Our picture is something like this. I have the initial setup of the linked list. इधर मेरे पास कुछ 2-4 nodes हैं. Say I have 45 here, 65 here, and 25 here. My NPTR is pointing to a fresh memory, which is say 15 here. It is grounded. और बिफोर की वैल्यू जो मैंने डाली है वो 25 है, ठीक है. इधर भी हमें एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाना पड़ेगा क्योंकि हम स्टार्ट को तो अपडेट करेंगे नहीं. चलिए अब लूप बता सकते हैं आप, व्हाट विल बी द लूप लाइक हियर. एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये क्योंकि बिफोर का फंक्शन है ना. अगर मुझे सपोज कर लो 45 से पहले ही ऐड करना है 15 वाले नोड को, तब तो लूप की जरूरत ही नहीं है. डू यू अग्री टू दिस, गर्ल्स? Yes, ma'am. इफ द वैल्यू ऑफ माय बिफोर इज 45, तब तो आपको लूप की जरूरत ही नहीं है. तो पहले हम ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी टेक अप करते हैं, इफ माय बिफोर इज इक्वल टू 45. कैसे चेक करेंगे इफ माय बिफोर इज इक्वल टू 45? तो एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी. क्या इफ कंडीशन लगाएंगे? If start arrow info equal to before. If start arrow info equal to before. ओके, सपोज कर लो ये ट्रू है और मैंने बिफोर की वैल्यू 45 डाली हुई है, तो आप कैसे फिट करेंगे इसको? इफ की बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे? NPTR Now, next first we need to point 15 to the 45. अच्छा, कहना चाहते हो कि मतलब जो NPTR arrow next है, this should point where start is pointing. Yes, ma'am. NPTR arrow next should point where start is pointing. So if this will NPTR arrow next ये है, this link will break up and this will start pointing where this is pointing. ठीक है. उसके बाद Start arrow next. Start is equal to NPTR. start is equal to NPTR. So this link will break up. Start will point where NPTR is pointing. Okay. So let us look at the resultant linked list. Start जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. 15 मेरा नया फर्स्ट नोड बन गया है, ठीक है. 15 का नेक्स्ट 45 वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए जो नया सेकेंड नोड बन गया है, ठीक है. एंड 45 का नेक्स्ट 65 को एंड सो ऑन. रिमेनिंग पार्ट तो अनडिस्टर्ब्ड है मेरा लिंक लिस्ट का. सो दिस इज फेयर इनफ. अब अगर हमने ऐसा कर दिया, वी कैन क्लियरली रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन, है ना. अगर मेरे बिफोर की वैल्यू 45 है, उस केस में मुझे आगे फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं है. अब रिमेनिंग पार्ट ये है कि अगर मेरा बिफोर जो है वो फर्स्ट नोड का इन्फो नहीं है, सपोज कर लो मेरा बिफोर 25 है, ठीक है. तो आई ड्रॉ द पिक्चर अगेन. दिस इज माय स्टार्ट पॉइंटर. देन आई हैव सम इनिशियल सेटअप ऑफ द लिंक लिस्ट. I have 45 here, 65 here and 25 here. ठीक है. I have NPTR which is pointing to the fresh memory, say 15 here and this is ground. चलिए अब बताइए for loop में क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले for temp obviously equal to start. So my temp pointer will point where start is pointing. उसके बाद
Yes. temp not equals to null. temp not equal to null. बेटा temp not equal to null, इसमें ना हमें एक कदम पहले चेक करना पड़ेगा एड बिफोर में, क्योंकि आप इमेजिन करके देखो, अगर आपका टेम्प 25 वाले को पॉइंट कर रहा है, सपोज टेम्प आपका भी प्रेजेंटली 25 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है और एड बिफोर फंक्शन है, तो मतलब मुझे 25 से पहले फिट करना है, तो इसका मतलब मेरे हाथ में 65 वाला पॉइंटर होना चाहिए. आई शुड हैव एक्सेस टू दैट 65 वाला पॉइंटर, क्योंकि जो 65 वाला पॉइंटर है वो 15 वाले नोड को पॉइंट कराना पड़ेगा. समझ रहे हो आप? तो अगर मेरा टेम्प 25 को पॉइंट कर रहा है और मुझे 25 से पहले फिट करना है, तो वो बात नहीं बनेगी. इसमें मुझे एक कदम पहले चेक करना पड़ेगा. तो आई विल यूज समथिंग लाइक टेम्प नॉट इक्वल टू नल की जगह मैं लिखूंगी टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, और सिंपली हम पॉइंटर को एक कदम कैसे आगे बढ़ाते हैं, टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट. देखिए ये कैसे चलेगा. सबसे पहले माय टेम्प इज पॉइंटिंग टू 45 वाला नोड. द कंडीशन सेज टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल. टेम्प एरो नेक्स्ट क्या है? टेम्प एरो नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड टू विच टेम्प इज पॉइंटिंग. ये है टेम्प एरो नेक्स्ट. ठीक है, ये क्या नल के बराबर है? दिस शुड नॉट बी इक्वल टू नल. ये नल के बराबर नहीं है, ये किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू है. सो नाउ आई एंटर द लूप बॉडी. ठीक है, आई एंटर द लूप बॉडी. लूप बॉडी में चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा टेम्प एरो नेक्स्ट का भी अगला इन्फो है 65, कहीं वो मेरे बिफोर के बराबर तो नहीं है. देखिए आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेम्प एरो इन्फो अभी 45 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन 45 के साथ मुझे बिफोर का कंपैरिजन नहीं करना है. व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट नोड वाज अ स्पेशल केस व्हिच आई टुक अप सेपरेटली इन द इफ ब्लॉक. तो दोबारा क्यों कंपैरिजन करना? सो आई विल राइट इफ टेम्प एरो नेक्स्ट एरो इन्फो, ये डबल इनडायरेक्शन मैंने यूज करा है, इज इक्वल टू बिफोर. How will this double indirection work? Temp arrow next. Temp arrow next means next part of the node to which temp is pointing. ठीक है, temp arrow next किसको पॉइंट कर रहा है? 65 वाले नोड को. उसका भी आगे इन्फो, उसका इन्फो क्या है? 65. तो क्या 65 मेरे बिफोर 25 के बराबर है? नो. सो दिस इज नॉट इक्वल टू माई दिस थिंग. तो अभी मैं इफ ब्लॉक नहीं लिख रही, तो मुझे आगे क्या करना है? मुझे अपना फॉर लूप मतलब टेम्प को एक कदम आगे बढ़ाना. सो आई विल गो टू द अपडेशन ऑफ द फॉर लूप एंड टेम्प विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू 65 वाला नोड नाउ. ओके, अगेन टेस्टिंग ऑफ द कंडीशन. आई कम हियर, टेम्प एरो नेक्स्ट. टेम्प एरो नेक्स्ट ये है 65 का नेक्स्ट. It should not be equal to null. This is true. Then I enter the loop body. The condition is true. I enter the loop body. If temp arrow next arrow info, temp arrow next क्या है? 65 का next मतलब 25 वाला नोड, उसका भी आगे info क्या हो गया? 25. Is it equal to before? Yes. Now it is a true condition. So I enter the if body. अब आप ये देखिए 25 मेरा बिफोर है, बिफोर की वैल्यू है, और 25 से पहले मतलब मुझे 15 वाला नया नोड ऐड करना है, और मेरा जो टेम्प है अभी 65 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है. इज इट क्लियर? नाउ इट इज पॉसिबल टू फिट 15 बिफोर 25. यस, व्हाट विल आई राइट इनसाइड द इफ ब्लॉक गर्ल्स? एनीवन? It should be like nptr arrow next equal to temp arrow next, and Wait then a minute, nptr arrow next. yes ma'am, equal to temp arrow next. Temp arrow next. Let us see what will this give. nptr arrow next, that is this. This link will break up and it should point where temp arrow next is pointing. ठीक है, उसके आगे then And temp arrow info equal to before.
temp arrow info नहीं बेटा, M arrow next. हाँ सॉरी करो नेक्स्ट एरो इन्फो इक्वल टू बिफोर. इन्फो तो हमें अपडेट करना ही नहीं है. टेम्प एरो नेक्स्ट ये हो गया. यस NPTR. 65 वाला नेक्स्ट अब उसको पॉइंट करना चाहिए 15 वाले नोड को. यस और नो? और 15 Yes, वाले ma'am, yes, ma'am. कौन पॉइंट कर रहा है? NPTR. So this should be equal to NPTR. So 65 वाला जो next है, this link will break up. It will start pointing where your NPTR is pointing. ठीक है? अब क्या का टास्क रह गया? आई थिंक हो गया है. अगर हम ध्यान से देखें पॉइंटर्स को, 65 का नेक्स्ट 15 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, ये 15 का नेक्स्ट 25 वाले को पॉइंट कर रहा है. 25 का नेक्स्ट ग्राउंडेड है क्योंकि वो लास्ट नोड है और बाकी तो अनडिस्टर्ब है मेरी लिंक लिस्ट. तो हम देख पा रहे हैं कि जो 15 वाला नोड है वो 25 से पहले फिट हो चुका है. दैट मीन्स 65 और 25 के बीच में वो फिट हो चुका है. सो वी कैन पुट अ ब्रेक हियर, break statement. Okay, and that's it. Is this clear to everyone, girls? Yes, ma'am. चलिए अब आफ्टर वाले पे आते हैं. ये तो हमारे ऐड बिफोर था. एडिशन में हमने आई थिंक ऐड एट एंड लिया था इस प्रोग्राम में, राइट? चिल्ड्रन कोई भी मॉडिफिकेशन आ सकती है प्रोग्राम में, लाइक हमने ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, ऐड नेक्स्ट. ऐड की मैं आपको 3 वैरायटी कर रही हूँ. एग्जाम में ये भी आ सकता है ऐड एट द थर्ड पोजीशन. ओके, ऐड एट द फर्स्ट पोजीशन, एनीथिंग कैन कम. तो आपको पॉइंटर्स को मैनिपुलेट करना आना चाहिए. देन ऐड एंड. अभी हमने ऐड आफ्टर और ऐड बिफोर करा है ना. तो एक सबसे पहले पॉइंटर पास करेंगे नोड एस्ट्रिस्क NPTR. ठीक है, अब ऐड एट एंड करना है मेरे को. मीनिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक्सट्रीम केसेस भी सोचने पड़ेंगे ना. ऐड एट एंड, सपोज कर लो मेरी लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है तो उसमें ऐड एट एंड क्या होगा? उसमें तो जो है मेरा जो नोड ऐड होगा वो वेरी फर्स्ट नोड ही बन जाएगा. NPTR पॉइंट कर रहा है फ्रेश मेमोरी को. तो फर्स्ट केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड हाउ डू आई फाइंड आउट वेदर इट इज द फर्स्ट केस और नॉट? यस, क्या लिखेंगे इफ कंडीशन में? इफ स्टार्ट इक्वल टू Star. यस, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल तो क्या करेंगे? Start is Fresh, equals to NPTR. yes, start will point where NPTR is pointing. बस वो मेरी लिंक लिस्ट बन गई. इतना ही टास्क करना है. इफ इट इज द वेरी फर्स्ट नोड टू बी एडेड, आगे वाली स्टेटमेंट्स मुझे नहीं एग्जीक्यूट करनी तो आई विल रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन इफ द इफ कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, एल्स केस में ओनली माई कंट्रोल विल कम हियर. अब क्या करेंगे? केस 2 मेरे पास ये है कि आई हैव एन इनिशियल सेटअप. कुछ है मेरे पास, लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है मेरी, कुछ 2-3 नोड्स हैं. Say I have 65 here, 45 here, then 35 here, and 25 is the info of the new node which is to be fitted. कुछ ऐसी पिक्चर है. ठीक है, अब सबसे पहले मुझे, क्योंकि add at end है ना इस फंक्शन में, तो लास्ट में ही लगाना है. तो मतलब 35 के बाद ही लगाना है 25 को. तो सबसे पहले तो मुझे लिंक लिस्ट के आखिर तक पहुंचना है. अपना पॉइंटर, टेम्प पॉइंटर एक एक कदम आगे बढ़ा के लास्ट तक जाना है. ठीक है, तो हाउ विल आई राइट? सबसे पहले फॉर टेम्प इक्वल टू स्टार्ट. ठीक है, सो माई टेम्प विल पॉइंट वेयर स्टार्ट इज पॉइंटिंग. ठीक है, आप मुझे कंडीशन बताएंगे एक कदम आगे हमेशा कैसे बढ़ाते हैं. टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट. ठीक है, मुझे अपने जो फॉर लूप है कहाँ तक बढ़ाना है? 65 से लिंक ब्रेकअप करके टेम्प का 45 पे पॉइंट होना चाहिए टेम्प, फिर 45 से ब्रेकअप करके 35 पे. इस पॉइंट पे मुझे अपने लूप को टर्मिनेट करना है. व्हेन टेम्प इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड. अगर मेरा टेम्प 35 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है तो ठीक है, तब मैं पॉइंटर मैनिपुलेशन करके 25 को फिट कर सकती हूँ आफ्टर 35. यू अग्री? So what will be the condition here in the for loop?
If temp is not equal to null. So temp is not equal to null. No. Temp arrow next. Temp arrow next. Temp arrow next is not equal to null. आप मेरी बात सुनो, टेम्प अगर नॉट इक्वल टू नल लिखेंगे तो 35 से भी आगे टेम्प को पहले बढ़ाना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा, फिर वो कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई फॉल्स हो जाएगी, द टेम्प शुड नॉट बी इक्वल टू नल। लेकिन अगर मेरा टेम्प ग्राउंडेड हो गया तो आई हैव लॉस्ट एक्सेस टू 35 वाला जो है नोड, उसके बाद फिर मैं फिट कैसे करूंगी 25 को? तो मुझे जो है एक कदम आगे चेक करना है, दैट इज टेम्प एरो नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू नल। सो यू सी टेम्प एरो नेक्स्ट, अभी मेरा टेम्प 35 को पॉइंट कर रहा है, टेम्प एरो नेक्स्ट क्या है, मतलब 35 का नेक्स्ट, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू नल, बट ये फॉल्स है, वो नल के बराबर है 30 टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। सो माई लूप विल टर्मिनेट। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो मेरा फॉर लूप बनेगा ये एम्प्टी बॉडी वाला फॉर लूप बनेगा, देयर विल बी नथिंग इनसाइड द बॉडी, क्योंकि मुझे सिर्फ टेम्प को लास्ट नोड को पॉइंट कराना है। नाउ माई पिक्चर इज लाइक दिस, टेम्प इज पॉइंटिंग टू 35 वाला नोड। अब क्या करेंगे, सिंपली 25 को कैसे फिट करेंगे लास्ट में, एंड में, बताइए, व्हाट विल आई राइट? Temp arrow next is equals to NPTR. Temp arrow next will point where NPTR is pointing. That means temp arrow next is this thing, this link will break up and it will start pointing where NPTR is pointing. I think और इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 25 वाला लास्ट नोड बन जाएगा अब, एंड उसका नेक्स्ट पार्ट ऑलरेडी ग्राउंडेड है, yes or no? So Yes, ma'am. End of add at the end member function. Clear है? Okay. So let's take a small member function, one more member function, and then I'll wind up with the attendance. So void linked type count member function. Count में बहुत easy है, आप एक वेरिएबल बना लो int ct इक्वल टू 0, सिर्फ क्या करना है, एक टेम्परेरी पॉइंटर मेरे को बनाना है, उस टेम्परेरी पॉइंटर को सबसे पहले हम पॉइंट कराएंगे जहां पर स्टार्ट पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, और एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे उसको जब तक मेरे नोड्स फिनिश ना हो जाए। तो उससे क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे, से 25, 45, 65। तो सबसे पहले हम टेम्प को पॉइंट कराएंगे जहां पर स्टार्ट पॉइंट करना है। Here, so how will I write the for loop? The for loop will be for temp is equal to start, then एक कदम आगे कैसे बढ़ाएंगे, temp equal to temp arrow next, ठीक है। तो पहले मेरा टेम्प जो है 25 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, मैं लूप के अंदर क्या करूंगी, ct प्लस प्लस, ct मेरा 1 बन गया, राइट, देन I will go to the updation part of the loop. So this link will break up and temp will start pointing to this. इस स्टेप में मेरा लूप के अंदर ct2 हो जाएगा, फिर this link will break up, temp will start pointing to 65 वाला, फिर लूप बॉडी के अंदर ct3 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि अब इस पॉइंट पे आपका जो लूप है टर्मिनेट हो जाना चाहिए, लेकिन जब आप लूप बॉडी के अंदर हैं, ध्यान से समझो, ct प्लस प्लस करा मतलब मेरा ct3 बन गया, तो माई कंट्रोल आफ्टर द एंड ऑफ द लूप बॉडी विल गो अगेन टू द अपडेशन पार्ट, ठीक है। तो दिस लिंक विल अगेन ब्रेक अप एंड टेम्प विल नाउ बी ग्राउंडेड बिकॉज 65 का नेक्स्ट ग्राउंडेड है। तो अब मुझे लूप बॉडी के अंदर एंटर नहीं करना, सो व्हाट विल बी द कंडीशन, टेम्प शुड नॉट बी इक्वल टू नल। इज इट क्लियर? Yes or no? Yes, ma'am. So now I have got the number of nodes in the ct variable. I can just simply display number of nodes in the linked list is ct. Clear here, girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am.